Bholi, it is a very interesting chapter. Have to go through the chapter. So I'm starting explanation. Now, in the first part, you have to know about a girl name. Her name was Sulekha. That means girl name was Sulekha. But since childhood, she had been called Bholi. Sulekha was called Bholi. The simpleton Bholi was the fourth daughter of Nambardar Ramlal. Nambardar Ramlal. Again, I repeat, Bholi was the fourth daughter of Nambardar Ramlal. That means Bholi's father's name was Ramlal. Now, when Bholi was 10 months old, she had fallen from the cot. She had damaged some part of her brain, so due to that, she remained backward in mind. That means her mind was no good developed. No, Bholi was very fair and pretty at birth, but she had the attack of smallpox. You know about smallpox? Obviously, you know smallpox when she was 2 years old. Her body, except the eyes, was disfigured. She had deep pock marks over her body. She stammered also. Other children made fun of her. As a result, she talked little. जब कभी भी वो कम बातें किया करती थी उनके फेस पर स्मॉल पॉक्स के कारण बहुत जगह स्पॉट आ गया था, धब्बे पड़ गए थे और इसके कारण लोग उससे मजाक भी उड़ाया करते थे। बट वो जब छोटी सी थी, जब वो जन्म ली थी, उस समय बहुत सुंदर दिखती थी। नौ उनके जो पापा थे वो नंबरदार रामलाल थे एंड उनका शुरू का नाम, स्टार्टिंग नेम, चाइल्डहुड का नाम, बचपन का जो है सब दिन उसे भोली भोली कहा किया करते थे और उनका नाम था एक्चुअल में सुलेखा। नौ रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। उनके दैट मीन्स यू कैन से कि भोली जो है 7 भाई बहन थे। 3 sons and 4 daughters. Bholi was the youngest. All the children except Bholi were healthy. Mangala and Champa would be married. When time would come, Radha, the eldest daughter, had already been married. But Ramlal was worried about Bholi. उनके पापा को, भोली के पापा को उनके भोली के बारे में बहुत टेंशन रहा करता था। शी वॉज neither ब्यूटीफुल नॉर इंटेलिजेंट। एक्चुअली बचपन में तबीयत बिगड़ने के कारण उनकी ब्रेन भी इतना डेवलप नहीं हो पाया, थिंकिंग भी इतना डेवलप नहीं था और न ही इतनी सुंदर थी। Bolu was 7 years old when a primary school was opened in the village. The Tehsildar came to perform the opening ceremony. He asked Ramlal to set an example for the villagers. He must send his daughters to a school. At first, Randal's wife objects to it. She said that no one would marry Boli, but Ramlal took Boli to a school the next day. इस तरह का सिचुएशन जो गांव में स्टार्टिंग में हुआ करता था कि लोग गर्ल्स को नहीं भेजा करते थे, उसी टाइम की सिचुएशन उसी तरह की बात यहाँ भी हो रही है। नाउ बोली वेयर वोर सम डिसेंट क्लॉथ्स। उनके जो पहनावे थे वो डिसेंट क्लॉथ पहने उस दिन जिस दिन फर्स्ट डे में स्कूल गए। नाउ न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर बोली। नए नए कपड़े उसके लिए बनते नहीं थे क्योंकि वो इतनी सुंदर नहीं थी। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर गिवन टू हर। शी वाज बट her hair were wild. Wholly fears much. The headmistress asked Wholly to sit down in a corner of the classroom. Actually, it is mistake. Sit down in a corner of the classroom. Wholly did not know what was school like, but she was glad that there was many girls of her own age. They would be her friends. बोले कि आप यहाँ बैठो, बैठने के बाद आप जैसे वो तो कभी स्कूल आई नहीं थी, स्कूल को कभी देखी नहीं थी, इस तरह से होता है, सिस्टम होता है। बट शी वॉज ग्लैड दैट देयर वर मैनी गर्ल्स ऑफ हर ओन एज। उसके एज की और भी बहुत सारी गर्ल्स उसके क्लास में थी। नाउ द लेडी टीचर said something to the other girls. Woli didn't understand. She looked at the pictures on the wall. She was charmed by them. These were, of course, the parrot, the cow, all were like the Woli had seen. The teachers asked Woli her name, but the stamped. She kept her head down. She felt that other girls would laugh at her. She began weeping. जैसे उसे कोई टीचर
अपना नाम, उनका नाम पूछा भोली से। उसके बाद उन्हें बहुत सारी बातों पे जब कोई कुछ पूछता था तो शर्मिंदगी फीलिंग होने लगती थी, सेम फील करती थी। और उनको ऐसा महसूस होता था कोई उसके जब कुछ बोलेगी तो लोग दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो उन पर हंसेंगे, इस तरह से वो रोना शुरू भी कर देती। नाउ इन द सेकेंड पार्ट, अभी तक जो हमने फर्स्ट पार्ट में जाना कि भोली एक किस तरह की गर्ल थी, उनका फैमिली बैकग्राउंड जाना, वो स्कूलिंग जाना शुरू कर दे। नाउ इन द सेकेंड पार्ट हम जानेंगे कि उसके आगे क्या हुआ। द टीचर कॉल्ड हर नेम, शी स्पोक वेरी सॉफ्टली, नो वन हैड स्पोकन टू हर अर्लियर लाइक दैट। Her heart was touched. The teacher then asked her name. When she stammered, the teacher did either get angry nor laughed. ना उस पर हंसा करते थे, ना ही गुस्सा करते थे, ना उस पर हंसा करते थे टीचर से, क्योंकि वो लोग जानते थे। सी इनक्रेज्ड भोली, सभी टीचर जो है भोली को बहुत इनक्रेज किया। एंड सी पैट भोली विथ लव, she asked Bolly to take the fear out of her heart. She also told her that she would speak rightly one day. Then she would not be afraid of anybody. उनके जो टीचर थी, मैडम थी, वो उनको बताए कि आप अभी डरते हो, आपके मन में बहुत सारी डर आती है, बट एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी बहुत अच्छे से बोलोगे और आप कभी किसी के आगे डरोगे नहीं। द टीचर गेव वोली अ बुक, इट हैड नाइस पिक्चर्स ऑफ डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट इन द कलर, अलग अलग कलर में बहुत सारे उस पर पिक्चर थे। द टीचर टोल्ड दैट she would be able to read in about 1 month, एक महीने में आप सीख भी जाओगे। she would read a bigger book, then no one would laugh at her. Woli felt happy. She felt as if the bells in the village temple were ringing. Her heart was beating with a new hope and new life. जिस तरह से उन्हें बहुत तरह की आशाएं टीचर के द्वारा मिलने लगी, कन्विंस किया गया, उसी के साथ साथ उनका होप, उनकी जो जिंदगी थी वो बिल्कुल बदलने लगी और उनका हार्ट अब उनके साथ होने लगा, गवाह देने लगा कि बिल्कुल वो आगे डेवलप करेगी, बहुत सारी चीज सीखेगी। नाउ द ईयर्स रोल्ड, साल बीतता गया, समय बीतता गया। द विलेज became a small town. The primary school became a high school. Now there was a cinema and a cotton mill. Now the mail train began to stop at the railway station. पहले वहाँ रुकते भी नहीं थे, अब गाँव जो सिटी में तब्दील हो गया, बदल गया, अब वहाँ पर ट्रेन भी रुकने लगे, स्टेशन भी बन गया। नाउ वन नाइट आफ्टर डिनर, रामलाल, उनके पापा ने, भोली के पापा ने asked his wife, भोली के मदर से पूछा about विशांबर proposal to marry भोली. His wife was happy that Bholi was getting a wealthy bridegroom. Vishambar had a big shop and a house of his own. He was 45 or 50. He lived also and he had the children from his first wife also. He didn't know if Bholi had pockmark on her face. Bholi had heard herself her parents speaking so. अब उनके दोनों आपस में हस्बैंड और वाइफ बात करने लगे, दैट मीन्स भोली के मामा मम्मी पापा दोनों बात करने लगे कि भोली के लिए इट विल बी बेटर कि एक लड़का देखा जाए, एक दूल्हा देखा जाए, और वो बिसाम्बर को पसंद किया उनके मम्मी पापा ने, इसलिए क्योंकि बिसाम्बर जो है धनी थे और उनका एक अपना शॉप था, अपना बिजनेस था, और बट उनका एज बहुत ज्यादा था, 45-50 एज के थे, बहुत ज्यादा एज के थे एंड लिमिट भी थे वो। नौ उनके इतना ही नहीं, उनकी शादी ऑलरेडी पहले हो चुकी थी बिशाम्बर के, और उनके उनसे फर्स्ट वाइफ से बच्चे भी थे। जब भोली ने इस बातों को सुनी तो अपने पापा को क्या बोलेंगे। नौ क्या हुआ आगे देखते हैं। ऑन द फिक्स डेज बिशाम्बर केम एज अ ब्रिजग्रूम. He sat on a decorated mirror. There was a brass band playing before the bridegroom. Bhuli's sister got jealous of her. Ramlal was also overjoyed to see such pomp. He had never even dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. ये लोग बहुत खुश हुए कि इस तरह से भोली का शादी होगी, दूल्हा बन के बिरसावर आ भी गया, जहाँ पर मंडप था शादी के लिए जो डेकोरेट किए गए थे पंडाल, वहां पर उन्होंने आया। अब क्या हुआ। At the fixed time, the Brahmin asked to bring the priest. जो ब्राह्मण आए थे पंडित ने बोला कि दूल्हा को बुलाइए। Voli was dressed in a red silk bridal dress. भोली आज बहुत रेड कलर की सिल्क
जो दुल्हन की ड्रेस होती है वो पहनी हुई थी। वन ऑफ द बिसाम्बर्स फ्रेंड आस्क्ड भोली टू ग्रांड लैंड द ब्रिज। उनके जो दूल्हे के जो दोस्त था बोले कि ठीक है आप माला पहनाइए। वुमेन स्लिpped back Boli's tail. Bishamber looked at her quickly. He asked his friend if he had seen the poke marks on Boli's face. His friend told him that it didn't matter. He was also not young. Bishamber asked for a dowry of 5,000 rupees. Ramlal put his turban, his honor, at Bishamber's feet. इतना ही नहीं, वहां पर जब भोली के फेस पर देखा गया, उनके दोस्तों के द्वारा देखा गया, सबके द्वारा, कि भोली के फेस पर पॉक मार्क्ड है, जो चिकन पॉक्स हो गया था, स्मॉल पॉक्स हो गया था, वो पॉक्स के कारण उसको पॉक मार्क है। तो अब यहाँ पर बिशंबर के द्वारा भोली के पापा से, पिता से, रामलाल से अब डॉरी की डिमांड करने लगी, जो कि 5,000 था। यू हैव टू कीप इन योर माइंड 5,000 रुपीज, बिकॉज क्वेश्चंस आर आस्क्ड रिगार्डिंग दिस। बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं कि कितने थे, कौन थे, किसने मांगा, इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डॉरी से मांगा गया तो 5,000 मांगा गया था, बिशाम्बर के द्वारा ही मांगा गया। तब रामलाल ने क्या किया, भोली के पापा ने अपने टर्बन को, अपने पाग को, पगड़ी को विश्वाम्बर के कदमों में, पैर में रख दिया कि मेरा इज्जत बता लीजिए। रामलाल वॉज टू गिव 5,000 रुपीज टू विश्वाम्बर एज डॉरी। अब तो उनको देना था, तभी वो शादी करता। रामलाल ऑफर्ड विश्वाम्बर 2,000 रुपीज। अब उनके पापा बोले इट विल बेटर कि आप 5,000 ना लेकर आप 2,000 ले लो। बट विश्वाम्बर रिफ्यूज्ड। He threatened that they will go back. यदि आप पैसा 5,000 रुपीज नहीं देते हो डॉरी के रूप में, एक्स्ट्रा नहीं दोगे, तो हम लोग बारात को लेकर चले जाएंगे। दैट मीन शादी से इनकार कर रहा था, यानी शादी नहीं करेंगे और हम लोग लौट जाएंगे। He also told to keep his daughter. Ramlal had tears on his face. At last, he put 5,000 rupees at Bishambar feet. उनके आंखों में आंसू भर गया रामलाल की। वो उसके बाद उन्होंने कहीं से अरेंज करके 5,000 रुपीज बिसाम्बर के कदमों में रख दिया, उनके पैरों पर रख दिया। बिसाम्बर आस्क्ड फॉर द गारमेंट। अब बोला कि ठीक है आगे का प्रोसेस कीजिए। Once again Voli had veil over her face, but she looked straight at Bishambar. There was neither anger nor hate, but only contempt in her eyes. Bishambar raised the garland to place it on Voli's neck, but she threw it into the fire. She told her father that she won't marry Bishambar. She asked him to take the money back. She also told that she was willing to marry the lame old man. But the but he turned out to be greedy and hateful. She won't marry him. बोला कि इस तरह से जब सब कुछ देखा भोली के द्वारा, उन्होंने अपने पापा को बोला कि जैसे ही बिसाम्बर ने गार्लैंड उनके गले में डालने लगा, उन्होंने माला को निकाल ली और वो आग में फेंक दी और अपने पापा को बोला कि शादी नहीं करेंगे बिसाम्बर से, इस तरह के लालची आदमी से। और बोला कि आप इनको, जो बिसाम्बर को जो आप रुपए दिए हो, मनी दिए हो, वो आप रिटर्न बैक ले लो। शी टोल्ड क्लियरली शी वाज विलिंग टू मैरी हर द लेम ओल्ड मैन। मैं बूढ़े से, लंगड़े से मैं शादी कर लूंगा, बट बिसाम्बर से नहीं करूंगा। बट इट टर्न आउट टू बी ग्रीडी एंड हेटफुल। शी वोंट मैरी हिम। वो उनसे शादी नहीं करेगी। अदर वुमेन wondered how Holy harmless dumb cow had become so violent। बोला कि जो इतनी शांत थी, जिनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, आज वो इतनी वायलेंट हो गई, इस तरह से आवाज निकलने लगी। क्यों ऐसा निकला? क्योंकि उनके माइंड जो है बहुत ही डेवलप करने लगा था। Holy told them that is why they were giving her to that greedy man, but she won't go। All started going back. Ramlal stood rooted to the ground, his head bowed low with grief and shame। सबके सब लौट गए। लौटने के बाद she won't go, all started going back। सबके सब लौटने लगे। रामलाल stood rooted to the ground, his head bowed low with grief and shame। शर्मिंदगी से उनका सर झुका हुआ था रामलाल का, भोली के पापा का। बट भोली ने क्या सोची कि उनका फ्यूचर कैसा है, लेकिन भोली अपने आप को करेज कर ले, अपने आप को बहुत डेवलप कर रही है माइंड को। द फ्लेम्स इन द सेक्रेट फायर स्लोली डाइड डाउन। रामलाल टोल्ड भोली दैट नो वन वुड मैरी हर देन। बोला कि रामलाल का कहना यह था कि ये जो सुलगे हुए आग है वो तो धीरे धीरे शांत हो रही है और कोई भी भोली शादी नहीं करेगा आगे। व्हाट वुड दे डू विथ हर?
कौन उससे करेगा, कौन उससे शादी करेगा। बोली टोल्ड हर फादर नॉट टू वरी, कभी टेंशन मत लो। शी टोल्ड हिम दैट she would serve them in old age, इनके she told him that she would serve them in old age, she would teach in the same school, उनके पढ़ाएंगे और पढ़ा करके और आगे बढ़ाएंगे। हर टीचर हैड सीन द होल ड्रामा, और उनके जो टीचर थे उनके शादी में शामिल भी हुए थे, और उन्होंने सारे ड्रामा को देखकर किस तरह से विशांबा ने उससे डिमांड किया, किस तरह से विशांबा ने उससे मांगा, मांगने के बाद वो कैसे इस तरह से सिचुएशन आ गया, और उस तरह से आज होली जो है इस तरह से बहुत सारे कमेंट करने लगे, किस तरह से वो अपने आप को डेवलप करने की। शी शोड हर सर्टिफिकेशन एज इट शी डिड शो लाइक अ ग्रेट आर्टिस्ट डज ऑन हिज क्रिएशन ऑफ आर्ट, और इस तरह से देखा गया किस तरह से वो अपने आप को डेवलप की। शी डिड शो लाइक अ ग्रेट आर्टिस्ट, आज वो दिखाई वो बहुत अच्छे बड़ी काम की, और इस तरह से वो दिखाया कि किस तरह से वो अपने अंदर में जो छिपी हुई उनमें जो आर्ट थी, या उनमें जो सीखी, जो नॉलेज डेवलप किया, आज वो खुद को दिखा दी। क्योंकि आज अपने पापा को आगे झुकने से बचा लिया, अपनी सोसाइटी की आंखें खोल दी, अपने आप को डेवलप किया, और बोली और सोची कि इसका जो फ्यूचर है वो अपने फ्यूचर को देखते हुए अपने आप को डिसीजन भी ले ले। थैंक यू सो मच।